ओके, तो कल ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए बोला था, तो लेट्स सॉल्व दिस वन। क्या दिया है? सो यू हैव गिवन दिस वायर फ्रॉम हियर पॉइंट ए, यहाँ से वायर शुरू हो रहा है एंड दिस इज एन इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब क्या कि एक तरह से एंड पॉइंट हमें पता है, मतलब एक तरह से आप लोग समझ सकते हो कि फाइनाइट है, एंड अदर फ्रॉम अदर साइड द वायर इज इन्फिनिटी। ओके, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा वायर है वो एक्चुअली, और उसका दूसरा एंड हमें पता नहीं वेयर इज इट। आर यू गेटिंग एवरीवन? So from this wire, current I is flowing, and this wire is making an angle of 45 degree with horizontal. ये जो भी कुछ horizontal होगा, इस horizontal से ये जो wire है ये 45 degrees का angle बना के ऐसा ये wire रखा हुआ है. Okay, so we have this infinite wire. We have kept this wire, that wire in such a way that it is making an angle of 45 degree with horizontal. Is that okay? समझ में आ रहा है everyone? हाँ सर। हाँ, इसके बाद ये जो पॉइंट है ए जहां से ये वायर शुरू हो रहा है, उस पॉइंट के डी डिस्टेंस नीचे नीचे एग्जैक्टली फ्रॉम द डी डिस्टेंस बिलो द पॉइंट ए एग्जैक्टली वेयर द वायर स्टार्ट्स, और वी कैन से दैट इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वायर और वन एंड ऑफ द वायर एक पॉइंट है पी, एंड एट दैट पॉइंट वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. द क्वेश्चन इज सेम, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी. आर यू गेटिंग एवरीवन? ऐसे पूरा क्वेश्चन लिख के देने की जरूरत नहीं है ना, किसी को पता है, समझ में आ जाएगा. यस सर। ओके, तो हाउ टू सॉल्व इट? हम लोगों ने एक बार 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं. दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन या फिर दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज अब तक हमने देखे रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बायो-सावर्ट्स लॉ. बायो-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है? इफ यू हैव एनी वायर which is carrying a current I through it, and if there is any point beside that wire, okay, let's say point P, then what Biot-Savart say? Biot-Savart says that the magnetic field due to whole wire at this point P is not easy to find, okay, easy to calculate. So but Biot-Savart say कहते हैं, but there is one more thing that you can find magnetic field at point P due to any small element of the wire. अगर इस वायर का छोटा सा कोई भी स्मॉल सा एलिमेंट अगर ले लोगे, इसका लेंथ dl होगा, so due to this small element of the wire you can find magnetic field at that point. Yes or no? So let's assume that this distance is r, this is dl, and angle between the r vector and dl vector is, let's assume it theta. Then what Biot-Savart says that magnetic field, the small magnetic field, that's why we are writing dB, that element is very small and hence the magnetic field created by that element will also be very small. So the small magnetic field which is created by this element dl at point P, this is given by mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. Yes or no? ये फॉर्मूला हमने देखा है, where the theta is the angle between dl vector and r vector. Yes or no? बोलो. यस सर। Now using this formula, using this information which was provided by Biot-Savart, what we derived? We derived the total magnetic field. We derived the total magnetic field at this point P if the wire is finite. So now if the wire is finite, it's possible to find the total magnetic field at this point P. Yes or no? तो हम लोगों ने इस केस में क्या किया? So suppose we are having any finite wire which is carrying the current I through it. What we will, suppose this is any point and we have to calculate the magnetic field due to this whole wire. Then using Biot-Savart's law only, we did it. We made some calculations and हम लोगों ने कुछ ऐसे ज्योमेट्री परफॉर्म किया, कुछ एल्गोरिथम परफॉर्म किया, then we put the perpendicular on the wire. पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट हमने perpendicular distance फाइंड किया, उसको मान लिया perpendicular distance a होगा उस पॉइंट से उस वायर का. Then we join these end points to the point. इन सारे दोनों end point को वायर के हम लोगों ने उस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया. We assume that this
परपेंडिकुलर इज नाउ अ रेफरेंस, हम लोगों ने इसे रेफरेंस लेके एज अ रेफरेंस लाइन लेके हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से ये एंगल फाइंड किया, वी नेम इट phi 1 and from the same line we found this angle in the opposite direction, obviously we named it phi 2, and from this information only, from this much information only, what information? First is the perpendicular distance, second is the phi 1 and another is the phi 2. From this much information only we are able to find the total magnetic field at this point P due to this whole wire. The formula was, बोलो फॉर्मूला क्या था? 0.45 I upon A I by A sin phi 1 minus sin phi 2 माइनस है क्या वो? plus तो प्लस साइन फाइ 2. तो चलो एवरीबॉडी, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था बराबर? हाँ. yes sir. इसके बाद क्या हमने देखा कि अगर वायर इनफाइनाइट हुआ तो मतलब क्या कि नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द वायर इज नाउ इनफाइनाइट, इट इज गेटिंग ऊपर और ऊपर जा ही रहा है, वो कभी थमने का नाम ही नहीं रहता, वायर इज इनफाइनाइट. ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो इज कि इनफाइनाइट को बहुत बड़ा डिस्टेंस कंसीडर मत करो. इनफाइनाइट इज नॉट समथिंग व्हिच इज एट वेरी 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 फार डिस्टेंस. नो, दैट इज नॉट इनफिनिटी. इनफिनिटी इज समथिंग व्हिच नेवर एंड्स. समझ में आ रहा है? कहीं बहुत दूर जाके वो थम रहा है उसका मतलब इनफिनिटी नहीं होता. इनफिनिटी का मतलब होता है इट इज नेवर गोइंग टू बी एंडिंग. समझे? मतलब कभी भी रुकने वाला नहीं. इट इज ऑल्सो गोइंग एंड गोइंग, इट नेवर एंड्स, इट नेवर स्टॉप्स. ओके, समझ में आ रहा है? बोलो. yes sir. तो अगर ये इनफाइनाइट वायर है मतलब ये अगर कभी थम ही नहीं रहा, कभी रुकने ही नहीं वाला, तो हम लोगों को इसका एंड पॉइंट कभी भी मिलने नहीं वाला. मतलब हम लोग जो लाइन ज्वाइन करने वाले हैं तो वो भी कभी रुकने नहीं वाली. इट विल आल्सो गो ऑन एज, मतलब जैसे इन दोनों दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो गए. एंड दैट इज व्हाई द phi 1 एंगल, अब इस केस में phi 1 एंगल कितना बनेगा बताओ? 90 degree 90 degree. So from the angle, from the side of the wire where the wire is infinite always become 90 degree. Okay, तो यहाँ पे sin 90 का वैल्यू पुट कर दिया, फिर यहाँ पे phi 2 का वैल्यू पुट कर दिया, आप लोगों को रिजल्टेंट मिल जाएगा. ओके, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ तक हमने देखा था कल. ये सब लोग बोलो जल्दी. yes sir. बस हम ये आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अगले टॉपिक पे जाते हैं. ओके, शुड आई रब दिस एवरीवन? हाँ sir. तो जब भी हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर, करंट कैरिंग वायर के बारे में, टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड नाउ. फर्स्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड सेकंड इज दोज एंगल phi 1 and phi 2. यस और नो? yes तो इस वायर की तरफ देखो. ओके, दिस इज ओनली द वायर. ठीक है, ए पॉइंट से इंफिनिटी की ओर जो वायर है यही वायर है. दिस इज नॉट वायर. ये हॉरिजॉन्टल है, ये मैंने बनाया है. ठीक है, to show that it is making 45 degree with horizontal. That is not a portion of wire. Okay, now एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस दिया है, ये जो लाइन डॉटेड लाइन बनाई है मैंने ए से लेके ई तक, इज दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या वायर से? नहीं नहीं ना, वो परपेंडिकुलर नहीं है. देखो ये जो लाइन है इस वायर को परपेंडिकुलर नहीं है. वो दिस एंगल इज नॉट 90 डिग्री. यस और नो? तो अब क्या करना पड़ेगा? पहले हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इस पॉइंट से इस वायर पे. ओके, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्सटेंड दिस वायर. इस वायर को इमेजिन कर सकते हैं कि थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे पीछे की तरफ. तो ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, चलेगा? बोलो. लुक, मैं जब बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ वायर को एक्सटेंड कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इमेजिन दैट देयर इज अ पोर्शन ऑफ वायर हियर आल्सो. जैसा मैं सच में नहीं करने वाला, बट स्टिल वी आर एक्सटेंडिंग द वायर. हाँ, अब मैं एक बात बताऊं, अगर मैं, हाँ, नाउ दिस लाइन, ये जो लाइन नहीं बनाई है मैंने, अब ये परपेंडिकुलर है. ये तो
Now this is perpendicular to the wire, isn't it? Yes sir. हाँ. तो मतलब क्या, अभी हमें ये जो डिस्टेंस है ना, इसको a मानते हैं हम लोग, बराबर. We assume a, which a is the perpendicular distance, yes or no? So this is the perpendicular distance, so we'll assume that length of this side is a. Is that okay? बहुत इजी. Yes sir. बस अभी a की वैल्यू फाइंड करनी है हमें. देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं. अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एंगल 45 डिग्री हुआ, so if this angle is 45 degree, okay, this angle is 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना बचा? ये जो अंदर का एंगल है ये कितना है? ये 45 डिग्री होगा, ये तो नो. 45 degree. हाँ, क्योंकि ये पूरा एक लाइन Yes sir. है, तो लाइन का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री ना. तो 180 माइनस 90 माइनस 45 बचा 45. तो ये जो अंदर का एंगल होगा इस ट्रायंगल के, छोटे से ट्रायंगल के, दिस एंगल इज 45 डिग्री. ओके, तो दिस एंगल इज 45 डिग्री. एवरीवन, इज दैट ओके? बोलो. Yes sir. हाँ. अब अगर ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल उसके अपोजिट बाजू वाला एंगल अगर 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल विल बी 45 डिग्री. यस और नो? अरे ट्रायंगल्स की सारे एंगल्स की एडिशन कितनी होती है? द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. यस और नो? हेलो अभय, खुशी, मीत, हरदेव. Yes sir. हाँ, तो अगर ये 45 हुआ, ये 90 हुआ, तो 90 प्लस 45 कितना होता है? 135. और ये कितना बचा फिर? ये 45 बच गया ना 180 से. Yes sir. सो दिस एंगल इज नाउ 45 डिग्री. अब एक काम करते हैं, ये P पॉइंट पे जो एंगल है ना 45 डिग्री, उस पे हम लोग क्या cos मान लेते हैं. ठीक है, cos 45 डिग्री हियर. सो वी आर नॉट रिक्वायर दिस एंगल. हम लोगों को इस एंगल की जरूरत नहीं है. वी जस्ट रिक्वायर दिस एंगल. ओके. सो व्हाट इज cos 45? cos 45 ये. तो इस एंगल को देखो, ये जो P पे एंगल है ना, इसको एडजेसेंट साइड है A अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होगा वो ये होगा. ये तो नो D. बोलो. साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंड हाइपोटेन्यूज. ये तो नो. Yes sir. तो देयरफॉर A की वैल्यू हमें मिल गई D cos थीटा. तो वी गेट द वैल्यू ऑफ A. अब हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड phi1 एंड phi2 नाउ. बराबर ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिल गया, एक काम पूरा हो गया. अब वो दोनों एंगल्स निकालने हैं, phi1 और phi2 कितना है. तो phi1 और phi2 कैसे निकालते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर से दोनों एंड को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका एंगल फाइंड करते हैं. ये सर दो. हाँ सर. हाँ, तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर है. पहले हम लोग क्या करते हैं? phi2 फाइंड करते हैं. phi2 मतलब क्या? लोअर एंड को ज्वाइन करने वाला लाइन. बराबर. अच्छा पहले phi1 ही फाइंड करते हैं. चलो सीक्वेंस ये जाते हैं. अच्छा phi1 और phi2 तो हमें फाइंड करना है, बट आप लोग को याद है ना phi1 और phi2 कैसे चाहिए? एक दूसरे के Opposite. अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए. ओके, ऑलवेज रिमेंबर. अब ये जो अपर एंड है उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो कितना एंगल बनाएगा बताओ परपेंडिकुलर के साथ? 90 degree. 90 डिग्री, बिकॉज वो इनफाइनाइट है. तो यहाँ से अगर हम लोग ऐसे एंगल बनाएंगे तो ये कभी एक्चुअली टच करेगा ही नहीं, क्योंकि ये जा रहा है हमेशा कंटिन्यूअसली. तो phi1 इज ऑलवेज 90 डिग्री हियर. अब हमें phi2 निकालना है, बट रिमेंबर वन थिंग, अगर phi1 हमने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने फाइंड किया है phi1, तो phi2 को कैसे फाइंड करना है? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज फाइंड करना है. तो एक बात बताओ, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, ये सब दो. हाँ सर. तो यहाँ से अगर ऐसे घूमते घूमते एंटी क्लॉकवाइज अगर ए तक जा रहा है ना, क्योंकि ए इज द लोअर एंड. ये सब दो. हाँ हाँ. तो देखो
यहाँ से ऐसे घूमते 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 ऐसे, मतलब इन शॉर्ट फ्रॉम हियर वी हैव टू गो टू हियर, ये सब नो। यस सर। तो कितने एंगल हो गया ये बताओ? 360 minus 45 degree. 360 माइनस 45 डिग्री, ये सब नो गुड। ये था 45 डिग्री बराबर। तो 360 पूरा सर्कल माइनस ये छोटा सा ट्राइंगल एंगल वो 45 डिग्री। तो 5 टू इज 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये सब नो। यस सर। तो दोनों एंगल्स मिल गए बराबर। फाई 1 और फाई 2 हमने कैलकुलेट किया इन सच वे दैट फाई 1 एंड फाई 2 बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन बराबर। कौन सी भी कंडीशन हमने डिसैटिस्फाई नहीं किया है, बोलो। So now we can find B. So B at point P formula क्या था? Mu naught upon 4 pi into I upon A. What is the value of A? अच्छा D सर को उसका डिग्री ले लो ना, 45 डिग्री। 45 कितना होता है? cos 45 is 1 by root 2, ये सब 1/√2। तो D by root 2 आएगा ये। तो A की वैल्यू क्या मिल गई हमें? D by root 2, isn't it? यस सर। हाँ, मल्टीप्लाइड बाय साइन। साइन फाई 1 कितना है? 90 डिग्री। साइन फाई 2 कितना है? 360 minus 45। 360 माइनस 45। सॉल्व करो इसे। ये जो रूट 2 था ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था, ऊपर चला जाएगा। √2 आए। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू रूट 2 आई डिवाइडेड बाय डी। sin 90 तो 1 हो जाएगा प्लस व्हाट अबाउट दिस sin a minus b, sin a cos b माइनस cos a sin b। cos 360 होता है 1 और sin b मतलब 1 बाय रूट 2 आएगा, माइनस 1 बाय रूट 2। ये सब लोग देखो तो एक बार देख करके। यस सर, 1/√2 है। माइनस 1 बाय रूट 2 हाँ। sin a cos b माइनस cos a into sin b। cos 360 डिग्री मतलब 2 पाई, cos 2 पाई इज 1 ना। तो 1 into sin 45 इज 1 by root 2 और ये माइनस आई डी sin बराबर। एवरीवन इसमें गड़बड़ है क्या कुछ? देखो एक बार। तो इतना भी रखा तो भी चल जाएगा, ठीक है। इस टेस्ला यूनिट क्या होगा इसका? समझ में आ रहा है क्या? बोलो। यस सर। इजी है, आप लोगों को सिर्फ 3 बातें याद रखनी होगी, ठीक है क्या? पहले तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए, ए डिस्टेंस। सेकेंड थिंग इज फाई 1 फाई 2, ये दोनों एंगल्स कैसे बनेंगे? एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों एंगल्स अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए बराबर। यस सर। हाँ, और अभी 2-3 एग्जांपल्स में से ये भी सीख लो कि शायद आप लोगों को डायरेक्टली वायर के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिल सकता, तो इन दैट केस यू नीड टू एक्सटेंड द वायर। आप लोगों को एक तो ऊपर या फिर नीचे कहीं तो भी आप लोगों को वायर थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ओके। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट सवाल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? हमने तो मैग्नीट्यूड लिख दिया ना, डायरेक्शन के बारे में बताओ कोई, कैसे होगा? पॉइंट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और पॉइंट पी पे देखो मेरा हाथ कैसे जा रहा है? इनसाइड। इनवर्ड्स।
So direction is inwards. Okay, directed inwards. समझ में आ रहा है हर किसी को, एवरीवन? इसे रफ करूं? Yes, sir. खुशी, मीत, हृदय? Yes, sir. So another important topic, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अभी तक हमने देखा कि सपोज एक वायर होगा अपने पास और वायर में से करंट अगर फ्लो हो रहा होगा, सो बिसाइड दैट वायर एट एनी पॉइंट वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? अभी कैसा भी वायर दिया आप लोगों को फाइंड करते आएगा, बोलो, यू विल बी एबल टू फाइंड, इजंट इट? हेलो? So now, what if we join both the ends of the wire? अगर उन दोनों एंड को ऐसे ज्वाइन कर दिया और एक सर्कुलर लूप तैयार कर दिया हमने इस वायर का, सेम, हम लोगों को कुछ भी अलग नहीं करना है। ओके, वी हैव टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट इन दिस केस। हम लोगों को सिर्फ ज्योमेट्री समझनी है, ज्योमेट्री समझ लो। देखो, अगर किसी सर्कुलर लूप को, मतलब एक ऐसा वायर है कि जो सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, उसको अगर तोड़ दिया और सीधा कर दिया तो आप लोगों को एक नॉर्मल वायर मिलने वाला है, बराबर? यस और नो? So similarly, if we have a current carrying wire, आप लोग हमें सिर्फ क्या करना है अभी, we have that finite current carrying wire, उस वायर के दोनों एंड से ज्वाइन कर देना और एक सर्कुलर लूप में उसको फॉर्म करना है, ठीक है? तो नाउ व्हाट वी हैव, हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। इट मींस वी हैव अ सर्कुलर वायर in circular form and a current is flowing through that wire in certain direction, एक तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, इट डिपेंड्स ऑन योर रेफरेंस फ्रेम। आप लोग कहां से देख रहे हो? ऊपर से देख रहे होगे क्लॉकवाइज दिखाई दे सकता है, नीचे से देखोगे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, एंड सो ऑन। सो नाउ द थिंग इज कि ड्यू टू दिस वायर, इस सर्कुलर वायर की वजह से, करंट कैरिंग लूप की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके वेरियस पॉइंट्स के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर एट इट्स सेंटर। सपोज एक सर्कुलर वायर है अपने पास, सर्कुलर लूप है अपने पास जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो ड्यू टू दैट flowing current or flowing charges, what happens, there will be a magnetic field around that wire, yes or no? So in that case, what we have asked, that our task is to find the magnetic field at the center of the wire. Is that okay? Hello? So now what we have to do, suppose we have this circular wire, circular तो दिख नहीं रहा, okay fine. Suppose now this is a circular loop. Circular loop मतलब क्या है कि सिर्फ वायर है, ठीक है, वायर को ऐसे दोनों एक पॉइंट ज्वाइन कर दिए और एक सर्कल बन गया है, ठीक है? नाउ दिस वायर और दिस सर्कुलर लूप इज हैविंग सम करंट इनसाइड इट। ओके, इसमें से करंट थोड़ा पास हो रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में ये करंट पास हो रहा है। ओके, नाउ व्हाट इज आवर टास्क? आवर टास्क इज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। लेट्स से दिस पॉइंट इज O, तो उसका सेंटर है, उस लूप का सेंटर है। ओके,
So we'll assume that radius of this loop is r. हम लोग मान लेते हैं कि इस लूप का जो भी रेडियस होगा वो कुछ a या फिर r मान लेते हैं. चलो r ही मानते हैं क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में r दिया है. ठीक है. So what we have now, we have this circular loop which is carrying current through it. From your side or from our side, the current is flowing in clockwise direction. Yes or no? बोलो. हाँ. और याद रखो, आप लोगों को याद करना पड़ेगा, हमने ऑलरेडी देखा है कि that if we have a circular loop which is carrying current through it, it creates a magnetic field. बराबर ना? हमें पता है, देखा था वो कि ये डायरेक्शन होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा. यस और नो? ये हमने देखा है ऑलरेडी. अब बस हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड होगा बट कितना, दैट वी हैव टू फाइंड. ओके एवरीवन? Yes, sir. हाँ. So now we have the circular loop, radius r, center is o, current is flowing in clockwise direction from our side obviously. हाँ. Now our task is to find magnetic field at point P, at point O. मतलब अपना टास्क जो होगा वो BO को फाइंड करना होगा. ओके. टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O. अब कैसे करना है? तो we'll use the Biot-Savart's law only. हम लोगों को Biot-Savart's law यूज करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और चांस नहीं है. तो व्हाट विल डू, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने देखा था Biot-Savart's में कि पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो वो नहीं, उसको नहीं पता या फिर वो बताता भी नहीं हमें. बट या if we consider any small element of this wire, if we consider any small element of this wire, then we can find magnetic field at point O due to that small element. Yes or no? बोलो. Yes, sir. हाँ. तो let us assume कि हम लोगों ने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया इस वायर का. We have considered the small element of the wire whose length is dl. Can we assume it? बताओ. Can we assume that yes, this is a small element of the wire whose length is dl? Yes or no? Yes, sir. हाँ. Again, if we consider dl as a vector, अगर हम लोगों ने उस एलिमेंट dl को as a vector कंसीडर किया तो उसका किसके डायरेक्शन में होता है बताओ. ध्यान से. if we consider that element, that particular small element dl as a vector thing, then what is the direction of that element? In the direction of current. Yes or no? बराबर था. Yes, बायो में जब स्टडी किया था तो वो जो स्मॉल एलिमेंट था उसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में था ना, बिकॉज करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ सूडो वेक्टर. तो डायरेक्शन मतलब क्या, डीएल का डायरेक्शन, जहां से करंट फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में हम लोग डीएल लेते थे. यस और नो? बोलो जल्दी. अभय, नीत, हरदेव, खुशी. Okay, so the direction of now dl is in this direction. भी होगा इस डायरेक्शन में होगा because current is in the direction. So तो इस पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन. मेरी आवाज आ रही है सबको? एवरीवन? हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ. तो दिस इज डीएल. और उसके बाद हमें क्या चाहिए कि वी हैव टू join that vector dl, that element dl to the point at which we have to calculate the field. Yes or no? जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है उस पॉइंट को हमने dl के साथ ज्वाइन तो करना पड़ेगा ना. सो लेट्स ज्वाइन दिस एलिमेंट dl to the center.
तो इस एलिमेंट को हमने सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया। ओके, सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस तो r होगा, यस और नो? रेडियस, सर्कल का रेडियस, Yes, sir. सर्कुलर लूप का रेडियस r होगा। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन r एंड dl? dl और r के बीच का एंगल कितना है? 90 degree. 90 degree. Okay, so magnetic field due to this small element will also be small, yes or no? बोलो। Yes, sir. तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा dB, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट dl इज, क्या था वो फॉर्मूला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा ना। sin थीटा कितना है बताओ? थीटा, व्हाट इज थीटा? 90 degree. sin 90 डिग्री अपॉन r स्क्वायर आएगा, यस और नो? r is the distance between point and element which is r here, so ये r square आएगा, isn't it true? यहाँ तक ठीक है क्या सबका? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अब if we have to find total magnetic field, अगर एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट O पे, तो हमें सिंपली से क्या करना पड़ेगा? बोलो। Integration. इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूअस थिंग, ये वायर जो है कंटिन्यूअस वायर है। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब क्या कि अगर अगर सपोज एक बात बताओ कि अगर हमने ये छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर कर दिया, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा बताओ? R. आर ही होगा। ये एलिमेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ये सब नो dl बार का। Yes, sir. इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 degree. 90 डिग्री। मतलब यही आंसर आएगा dv के लिए। इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यही होगा, ये सब नो? Yes, sir. दूसरा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, एक और। सपोज ये एलिमेंट कंसीडर किया, स्टिल ये डिस्टेंस भी कितना होगा? R. r, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, सॉरी dl का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ये एंगल कितना होगा? 90 degree. Similarly again 90 degree, so everything is same। मतलब क्या, in short if you consider each element of this wire, हर इस वायर का हर एक एलिमेंट अगर ऐसे कंटिन्यूअसली कंसीडर करते गए, so you will find that magnetic field, that small magnetic field due to every element is this only, change बिल्कुल भी नहीं होगा, यही होगा, yes or no? Yes, sir. तो सिंपली अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मतलब क्या कि we just need to find magnetic field due to this element plus magnetic field due to this element plus magnetic field, मतलब हर एक एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, हर एक एलिमेंट की वजह से एल्जेब्रिकली ऐड करना है उनको। अभी इस केस में कंटीन्यूअस एडिशन मतलब क्या कहते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन कहते हैं, ये तो नो? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो देयरफॉर टू गेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, चलेगा? This will be integration of dV, yes or no? Yes, sir. But important thing is pay attention कि इंटीग्रेशन किस पे लेना है हमें? इंटीग्रेशन की लिमिट पता होनी चाहिए ना। We are taking integration over this circle, yes or no? बोलो। Yes, sir. Yes. बराबर ना? इन सारे स्मॉल एलिमेंट्स को हम लोग कलेक्ट करते जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग इंटीग्रेशन ओवर दिस सर्कल ले रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ओवर द सर्कल या फिर सर्कुलर लूप कह दो आप लोग, सर्कुलर लूप, इंटीग्रेशन ओवर द सर्कुलर लूप इज बेटर वर्ड, ओके, dv। तो ये क्या आएगा बताओ? इंटीग्रेशन ओवर सर्कुलर लूप, ये क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4 I dl pi. sin Yes. थीटा इज sin 90 is क्या सर? One. sin 90 1 1. 1 लिखा नहीं तो भी चलेगा, अपॉन r स्क्वायर, ये सब नो? Yes, sir. चलो बताओ क्या क्या कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है क्या नहीं, बताओ? Yes, Yes, sir. sir. I कांस्टेंट है कि नहीं? करंट कांस्टेंट होगा। हाँ. Yes, sir. यहाँ पे भी अगर I एम्पियर है, यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी I, ऐसे थोड़ी है। करंट अलग अलग थोड़ी हो सकता है, करंट इज सेम।
आर स्क्वायर Radius. कांस्टेंट है क्या? हर एलिमेंट के लिए रेडियस सेम होगा, Yes, sir. Yes, sir. तो आर स्क्वायर को भी बाहर निकाल दिया, बचा क्या? सर्कुलर लूप DL. डीएल वेरिएबल है बराबर ना, ये डीएल अलग है, ये डीएल अलग है, ये डीएल अलग है, ये सब लोग। Yes, sir. हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये बाकी का मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन डीएल, अच्छा एक बात बताओ, डीएल क्या है? डीएल इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस सर्कल, ये सर नो, Yes, sir. डीएल इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस सर्कल, और हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं डीएल को, मतलब क्या? हम लोग ऐसे सारे एलिमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, ये सर नो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो एक बात बताओ, ध्यान दो यहाँ पे, कि अगर इन सारे स्मॉल स्मॉल डीएल एलिमेंट को हम लोग कलेक्ट करते गए तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? पूरे सर्कल का पूरा सर्कल का क्या मिलेगा? क्या बोलते हैं उसे? सर्कमफरेंस मिलेगा ना, ये तो नो। इफ वी कलेक्ट दिस Yes, sir. ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ऐसे सारे एलिमेंट को कलेक्ट करते गए हम लोग, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? पूरे सर्कल का सर्कमफरेंस मिलेगा, ये सर नो। Yes, Yes, sir. sir. बराबर ना? डीएल क्या है? व्हाट इज डीएल? लुक, व्हाट इज डीएल? फर्स्टली, डीएल इज द लेंथ ऑफ अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, ये सर नो। वो लेंथ है, लेंथ, डीएल इज द लेंथ ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट, ये सर नो। Yes, sir. तो अगर इसका लेंथ डीएल कनेक्ट कर दिया, इसका लेंथ डीएल कनेक्ट कर दिया, ऐसे सारे डीएल मतलब सारे लेंथ को अगर कलेक्ट कर दिया हम लोगों ने, तो हमारे पास सर्कल का लेंथ आ जाएगा, ये सब लोग पूरे सर्कल का लेंथ, Yes, sir. एंड दैट इज नथिंग बट सर्कमफरेंस। ओके, तो ये इंटीग्रेशन ओवर सर्कुलर लूप डीएल क्या आएगा? सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कमफरेंस क्या है बताओ? इस सर्कल का सर्कमफरेंस क्या है, जल्दी से बताओ। 2 पाई आर, ये सब नो। Yes, sir. 2 pi r is the circumference of the circle, तो ये r और r कैंसिल हो जाएगा एक एक, एंड फाइनली देयरफॉर आप लोगों को b की वैल्यू क्या मिल जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2 pi I upon r, isn't it? Yes, sir. So magnetic field at the center of the current carrying circular loop, magnetic field at the center of the current carrying circular loop is B equals to mu naught upon 4 pi 2 pi I upon r. Okay everyone? Yes, sir. हाँ, अभी इसका डायरेक्शन बताओ पहले तो। चलो देखते हैं, ये जो सर्कल था ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, तो मेरे जो Inward. Inward, sir. inwards, so direction is inwards, but still one important thing, आप लोग यहाँ पे डायरेक्शन मत लिखना, क्योंकि हम लोगों ने क्लॉकवाइज कंसीडर किया था ना। सपोज एग्जांपल में एंटी क्लॉकवाइज आ गया, फिर आर यू गेटिंग? इट डिपेंड्स ऑन द एग्जांपल कि आप लोगों को एग्जांपल कैसे फॉर्म में दिया है, so don't write the direction here, just stay with the magnitude. Okay? Okay, sir. हाँ, और ये इम्पोर्टेंट चीज की सबसे इम्पोर्टेंट, इसे आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि एग्जाम में जब ये ऐसा कोई एग्जांपल आएगा इसका, इसके ऊपर बेस, तो आप लोग ये सब डिराइव करते बैठोगे क्या? नहीं, sir. नहीं ना, तो आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बहुत इजी फॉर्मूला है, 2 पाई आया अपॉन आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो हर जगह होता है। एवरीवन, इज इट इजी? बहुत इजी है ना एकदम? खुशी, Yes, sir. मुझे, मी, अभय। Yes, sir. हम्म।
लिख दिया सब लोगों ने? नहीं सर, यस रुको। सर। लिखो लिखो जल्दी लिखो। हो गया सर। हो गया सबका? यस सर। नेक्स्ट, इसमें एक स्पेशल केस, एक नहीं दो स्पेशल केस एक्चुअली हमें लेना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप तो हमने देख लिया, बट व्हाट हैपेंस इफ द सर्कुलर लूप इज नॉट सर्कुलर एक्चुअली बट इट्स सेमी सर्कुलर, ये पूरा सर्कुलर नहीं होगा, अगर सेमी सर्कल ही सिर्फ दिया आप लोगों को तो क्या होगा हम लोगों को देखना है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर वायर, so magnetic field due to a current carrying semicircular wire। तो पहले बना लेते हैं वो कैसे दिखता है। तो इफ यू हैव दी semicircular, ये दिख रहा है semicircle? यस। तो मान लीजिए इसका सेंटर है O, O इज द सेंटर ऑफ दिस semicircular wire। ओके, देखो ये पोर्शन वायर का नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट वायर, मैंने सिर्फ इसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया है। ओके, सो वायर इज दिस वन ओनली, ये सिर्फ इतना ही वायर है एंड करंट I is flowing through this wire। ओके एवरीवन? यस सर। हाँ, तो अब क्या करना है, अगेन सेम क्वेश्चन, in magnetic field we have to find the magnetic field due to the semicircular wire at the point O। ओके, सब कुछ सेम करना है। एक बात बताओ कि सपोज हमने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ से कंसीडर कर लिया जिसका लेंथ मान लेते dl है, इसका जो जो भी कुछ डायरेक्शन होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, ये सब लोग इन दिस वे। यस सर। यस सर। if we join that point to the point, if we join this element to the point where we have to find magnetic field, तो ये डिस्टेंस हम लोग r मान सकते हैं। सपोज ये सेमी सर्कल का रेडियस r है ऐसा मान लो, तो ये डिस्टेंस भी r होगा, ये सब लोग। यस सर। व्हाट इज दिस एंगल? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अगेन ये हर एलिमेंट के लिए सेम होगा। हाँ सर। कौन सा Yes, एलिमेंट sir. है? आप लोग यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लो, यहाँ पे एलिमेंट ले लिया dl, तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ये सब लोग dl का करंट के डायरेक्शन में। यस सर। यस और ये सर। रेडियस वेक्टर r, अगेन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। Yes. Everything is same। So this small magnetic field due to this small element dl क्या आएगा बताओ? 4/2। sin upon r square, yes or no? यस सर। यस सर। दोनों same। But in this case now, if you have to find total magnetic field, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा simply। But now integration must be taken over a semi-circular loop, yes or no? क्योंकि अभी पूरा सर्कल नहीं है अपने पास, तो इंटीग्रेशन भी हमें हमें सिर्फ इस सेमी सर्कल के ऊपर लेना पड़ेगा, yes or no? यस यस सर। सर। So integration taken over semi-circular loop of dv equals to integration,
यही सब कुछ लिख दो, ठीक है। आप मैं इतना नहीं लिखूंगा। सेमी सर्कुलर लूप डीवी क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin 90 is 1 upon r square। ये सर दो, बोलो यहाँ तक ठीक है। Yes, sir. चलो क्या कांस्टेंट आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा। i और r स्क्वायर दोनों कांस्टेंट है। Yes, sir. मीडियम के लिए रेडियस तो सेम होगा और करंट भी सेम होगा। बचा क्या, सेमी सर्कुलर लूप dl। ये सर दो, Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब हम लोग क्या कलेक्ट कर रहे हैं, dl को कलेक्ट कर रहे हैं, बराबर। इस सेमी सर्कुलर लूप में जितना भी dl होगा, मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे, उन सबको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब कलेक्ट कर रहे हैं। ये सर लो। हाँ सर। हाँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस सेमी सर्कल के ऊपर सब एलिमेंट्स को ऐसे कंसीडर कलेक्ट किया मैंने, सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को कंसीडर किया, तो ये पूरा लेंथ मिल जाएगा मुझे। Yes, sir. मतलब वो सेमी Yes, सर्कल sir. का जो भी सर्कमफेरेंस होगा वो मिलेगा हमें। Yes, sir. हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये r रेडियस का अगर सर्कल होगा, तो उसका सर्कमफेरेंस कितना है, 2 Pi pi r. r. 2 पाई r। ओके, इस वजह से इस सर्कल में से मैंने हाफ सर्कल हटा दिया, आधा, तो ये सर्कमफेरेंस कितना Upon बचेगा, Pi half r. उसका by 2. बराबर, क्योंकि हाफ निकाल दिया मैंने, Yes, तो हाफ से डिवाइड करेंगे। सर्कल सर्कमफेरेंस कितना आया, Pi pi r. r. पाई r। तो इस सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा, Pi r. Pi r. की वैल्यू क्या आएगी, पाई r। ये तो नो। Yes, sir. अच्छा क्या कैंसिल होगा, आप देखो, देयरफॉर b की वैल्यू क्या मिलेगी, r r कैंसिल हो जाएगा, u नॉट अपॉन 4 U पाई naught 4 pi. Pi I upon r. पाई i अपॉन r। Pi ये तो I upon r. हाँ, जो कि एग्जैक्टली हाफ है पिछले वाले फॉर्मूला का। देखो, पिछले वाले फॉर्मूला को 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये फॉर्मूला मिलेगा। ये समझो, Yes, sir. इजंट इट। Yes, Yes, sir. sir. लिखो जल्दी से। डन। एवरीवन हो गया क्या, Yes, sir. अभय, खुशी, अमित, नहीं हरदेव। Yes, sir. अच्छा देखो, आप लोगों के लिए होमवर्क होगा कि सेम सेम एवरीथिंग इज सेम, बस अभी आप लोगों को सेमी सर्कल की जगह एक क्वार्टर दिया है। यू हैव अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, तो यू हैव दिस पार्ट, ये सर्कल का क्वार्टर है। ये समझो, Yes, sir. क्या होना 1/4 पार्ट, जो फोर्थ पार्ट Hmm. होगा वो 1/4 पार्ट। हाँ, तो यू हैव दिस क्वार्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r, तो ये भी रेडियस r, ये भी रेडियस r, ये उसका सेंटर है o। तो यू हैव टू फाइंड, एंड दिस इज, मतलब ये वायर नहीं, ठीक है, दिस नॉट वायर, ये सिर्फ ये वायर है, ठीक है, दिस मच।
from here to here. This is wire which is carrying the current I through it. Okay. Now your task is to find magnetic field at point O only. Similarly, सेम करना, सब कुछ सेम करना है, बस आप लोगों को ये सब सेम होगा, बस यहाँ पे इंटीग्रेशन डीएल जब आएगा, then you have to connect all these small elements, ये सब लोग यहाँ के, isn't it? Yes, sir. और ये लेंथ पूरा कितना होगा? Yes, One yes. by four का होल सर्कमफेरेंस है, सर नो, हाँ, मतलब सेमी सर्कल का भी आधा, सर्कल का 1/4, सेमी सर्कल का आधा। तो ये जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस क्वार्टर, ये आएगा 2r। ओके, यहाँ पे सिर्फ 2r आएगा। इज दैट ओके एवरीवन? yes, Yes, sir. कर पाओगे ये? हाँ सर। ठीक है, फिर इतना करो, मिलते हैं अगले वीक में और हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स है वो सॉल्व करेंगे एंड फिर गो फॉर एम्पियर सर्कुलर लॉ। ओके, yes, sir. Yes, sir.